बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं वकार खानज़ादा और आप देख रहे हैं वकार खानज़ादा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इस टॉपिक में हम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स जजेस एंड आल्सो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस भी डिस्कस करेंगे। The Supreme Court of Pakistan is the highest court of Pakistan. It is both constitutional and ordinary court of law. All decisions of Supreme Court of Pakistan are binding to all the courts of Pakistan. The principal seat of Supreme Court is in Islamabad. Supreme Court of Pakistan हाईएस्ट कोर्ट है पाकिस्तान में। इससे अबव कोई कोर्ट पाकिस्तान में नहीं है। ये दोनों तरह से काम करती है, एक ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ की सूरत में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की सूरत में भी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई केस आता है तो वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा, और अगर किसी आम कानून का कोई केस आता है, किसी भी और एक्ट का केस आता है थ्रू अपील, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस होगा। देन इसके तमाम के तमाम डिसीजन तमाम सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर अप्लाई होंगे और बाइंडिंग होंगे। प्रिंसिपल सीट सुप्रीम कोर्ट की इस्लामाबाद में है। Composition of Supreme Court of Pakistan. According to the Constitution of Pakistan, the number of judges of Supreme Court of Pakistan shall be determined by an Act of Parliament. In the light of this provision, the Supreme Court Act 1997 has determined that the number of judges of Supreme Court of Pakistan other than the Chief Justice shall be 16. A person with 5-year experience as a judge of High Court or 15-year experience as advocate of High Court is eligible to be appointed as a judge of Supreme Court. So, according to Constitution, नंबर ऑफ जजेस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से डिटरमाइन होगा। 1997 में एक एक्ट पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट एक्ट के नाम से। उसके जरिए से नंबर ऑफ जजेस की तादाद 16 रखी गई। चीफ जस्टिस प्लस 16 जस्टिस। उसके बाद क्वालिफिकेशन ये बताई गई कि एक ऐसा बंदा कि जिसकी 5-year एक्सपीरियंस हो एज एन जज ऑफ हाई कोर्ट एंड 15-year एक्सपीरियंस एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, तो वो बंदा अपॉइंटेड हो सकता है फॉर द जज फॉर द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। देन क्वालिफिकेशन फॉर जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहा गया है एंड हेड ऑफ ऑल दीज जजेस विल बी नोन एज चीफ जस्टिस। So qualification of a person to be elected as a judge of Supreme Court of Pakistan. First one is person should be citizen of Pakistan. He is serving as judge in High Court for at least 5 years. He is serving as an advocate in High Court for at least 15 years. Oath of the office. Before entering in the office of Chief Justice,
the Chief Justice shall take oath of his office before the President of Pakistan, and other judges shall take oath of their office before the Chief Justice of Pakistan. After appointment, ओथ लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट ओथ लेगा एंड अदर जजेस ओथ लेंगे बिफोर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. The Chief Justice shall be appointed by the President, while the other judges shall be appointed by the Chief Justice after consultation with the President. Chief Justice को अपॉइंट किया जाता है by the President. President के पास 3-4 नाम जाते हैं जिनमें से किसी एक को अपॉइंट किया जाता है. Then अदर जजेस को इस तरह से अपॉइंट किया जाता है कि जुडिशियल काउंसिल में अकॉर्डिंग टू एज अपॉइंटमेंट होती है. रिटायरिंग एज. द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज 65 ईयर. Then acting Chief Justice. In the absence of Chief Justice, the President of Pakistan appoints the senior most judge to act as Chief Justice. अगर किसी वजह से because of illness, because of foreign tour, Chief Justice अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे Senior most judge of Supreme Court will be appointed as an acting Chief Justice by President of Pakistan. Ad hoc judge. The Chief Justice of Pakistan may request the President of Pakistan to appoint the number of judges on temporary basis in the Supreme Court. Judge appointed on ad hoc shall have the same power and jurisdiction as the other judges of Supreme Court. Supreme Court के केसेस को ख़त्म करने के लिए, काम को कम करने के लिए, अगर दूसरे जजेस के ऊपर बर्डन ज़्यादा है तो उस बर्डन को कम करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर सकता है बिफोर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट एड हॉक जजेस. एड हॉक जजेस की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है. देन प्रेसिडेंट के ज़रिए से अपॉइंटमेंट होती है फॉर 2 ईयर, और अगर 2 ईयर से ज़्यादा चीफ जस्टिस चाह रहे हैं तो वो भी रिक्वेस्ट के ज़रिए से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के लिए. देन powers and function of Supreme Court. Jurisdiction of Supreme Court. First one is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction is the power of Supreme Court to review and change the decision of lower courts after submission the appeal by application. First jurisdiction is about appeal. अगर हाई कोर्ट से कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो रिव्यू करने के बाद डिसीजन को चेंज कर सकती है और हाई कोर्ट के डिसीजन को सस्पेंड कर सकती है. सेकेंड वन इज ओरिजिनल jurisdiction. Original jurisdiction of Supreme Court is the power to hear a case for the first time, and court enforces the fundamental rights by original jurisdiction. Original jurisdiction से मुराद कि कोई भी केस for the first time
फर्स्ट हियरिंग उसकी यहीं पे होगी। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स के जितने भी केसेस हैं या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम होती है। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, द प्रेसिडेंट मे सीक द opinion of Supreme Court on any question of law or question of fact of public importance. After receiving an opinion, President thinks whether it is useful or not. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मुराद ऐसी जुरिस्डिक्शन है कि जिसमें कोर्ट प्रेसिडेंट को ऑन हिज एप्लीकेशन कोई एडवाइस जारी कर सकती है या किसी केस में भी नोट के ज़रिए से एडवाइस दी जा सकती है कि इस मामले को इस तरह से हल करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देन सो मोटो जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर फॉर सो मोटो जुरिस्डिक्शन। अंडर दिस jurisdiction the court takes notice of the matter by itself and start judicial proceeding. सो मोटो jurisdiction में कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है और जुडिशियल प्रोसीडिंग का आगाज किया जाता है। अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई मामला है तो उस पे सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। या अगर वायलेशन हो रही है लॉ की, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो उस पे भी सो मोटो एक्शन लिया जा सकता है। इस पे जो लॉयर होंगे वो गवर्नमेंट के लॉयर होंगे और जुडिशियल प्रोसीडिंग का आगाज किया जाएगा इन सुप्रीम कोर्ट। देन फिफ्थ वन इज रिवीजन पावर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज पावर टू रिव्यू द जजमेंट ऑफ एनी ऑर्डर मेड बाय इट because it is a careful examination of matter in order to correct or improve its decision. रिवीजन पावर एक ऐसी जुरिस्डिक्शन है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कोई डिसीजन दिया, कोई जजमेंट दी, उसके ऊपर रिव्यू फाइल किया गया, क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बताया गया और कोर्ट ने भी ये बेहतर समझा कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ की वजह से हमें दोबारा इस पे बहस करनी चाहिए, तो फिर कोर्ट उस केस को दोबारा सुनेगी और अगर कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि डिसीजन को चेंज करना चाहिए तो वो चेंज भी कर सकती है। दिस इज द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। देन प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। One of the greatest function of Supreme Court of Pakistan is to protect the fundamental rights of citizen of Pakistan. This is the function of Supreme Court to protect fundamental rights. इन्हीं राइट्स के ऊपर, इन्हीं राइट्स की वायलेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन लेने के लिए भी जा सकती है। Then to issue direction. Under Article 187, the Supreme Court has power to issue such direction which are necessary for administration of justice in any case which is impending before it. Supreme Court
Under Article 187 of Constitution of Pakistan 1973 डायरेक्शन इशू कर सकती है कोई भी केस जो इसके सामने अभी पेंडिंग है या इसके सामने प्रोसीड हो रहा है, उसके ऊपर डायरेक्शन इशू कर सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन। द सुप्रीम कोर्ट has power to enact different rules and regulation in order to run its own business and keep the judges under control. Supreme Court, same like Senate, अपने rules and regulation खुद बनाती है for its working and for running the business and to control judges. Then, interpretation of the Constitution. The Supreme Court has power to interpret the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Supreme Court makes complex laws understandable by interpreting them. Interpretation का जहाँ पे भी लफ्ज़ आएगा उसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करना। अब इंटरप्रिटेशन का किसी भी तरह का कोई भी केस किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, किसी लोअर कोर्ट में नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगी। Then, guardian of the Constitution. The Supreme Court is the guardian of Constitution and it explain and elaborate constitutional status within the country. Last one is transfer of cases. Supreme Court of Pakistan has power to transfer any case, appeal, or other proceeding pending before it in any high court and from any high court to any other high court. सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि अगर वो बेहतर समझे तो वो किसी केस को ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट। Last one is binding effect of decision of Supreme Court. क्वेश्चन के शुरू में हमने डिस्कस किया था कि इसके तमाम के तमाम डिसीजन लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग हैं। सेम लाइक दिस वन दैट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैव बाइंडिंग इफेक्ट on the subordinate courts of Pakistan. Thank you so much.